जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। लोग कहते हैं कि लोग अपने करियर में एक प्रोडक्टिव ब्रेक लेते हैं। हमारी ब्रेक कितनी प्रोडक्टिव थी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ मलिका थी, अब मनन साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। टेरी पल्लवी, जब आपने अपनी शुरुआत करी करियर की, कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने हुए बिन विद यू थ्रू आउट, जैसे अभी रेणुका आई थी, वैसे ही क्या कुछ और ऐसे दोस्त हैं जो शायद इस इंडस्ट्री से हैं या अदरवाइज जिनसे आपकी लंबे अरसे तक दोस्ती चली हो? हाँ है, काफ़ी है। इनफैक्ट इट्स अ फनी थिंग, लेकिन अंताक्षरी में जितनी भी होस्टेसेस आई हैं वो सब हम लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। वंडरफुल, वंडरफुल टू नो कि एक ऐसा जो है वो दौर चला, वो असल में शो ही इतना लंबा चलता गया कि आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम वहां पर दीस फेसेस हैव बिकम सो फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस। पर कुछ फेसेस हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ थोड़े फेमिलियर हैं। हाँ। किसी को हमने यहाँ पर बुलाया था, प्लीज आइए। बाप रे, सरिता and I go, God, how many years ago? I don't want to say it. सरिता, आप इनको किस उम्र से जानती हैं? 4 साल, 5 साल, I don't even remember. अच्छा, और क्या आपने इनको इतने सालों से देखा है? पहली बात तो कुछ फॉन्ड मेमोरीज जो आपकी होंगी इनके बारे में हमसे शेयर करिए। I think the fondest memory that we share is the Robin Hood play. Oh yeah. That we used to. Oh my God, that was a crazy idea. क्या था ये रॉबिन हुड, मतलब क्या? Okay, actually जैसे पल्लवी बता रही थी, हमारे सोसाइटी में एनुअल डे फंक्शन होता है और पल्लवी की फैमिली obviously was very involved, her mother being a singer and you know all of that. तो उसके भाई और मेरे भाई दोनों लीड एक्टर्स थे ये प्ले में, एनुअल डे सेलिब्रेशन पे। तो उसका भाई was Robin Hood and my brother was John. And I would always want to play Robin Hood, but Pallavi would never let me play Robin Hood. No, my brother was Robin Hood, so I would be Robin Hood and she had to be John, you know. And no one else could replace Robin Hood and John. Yeah, and not even once. We would play that practically every evening those days, but she would say, no, my brother's Robin Hood, so I'm going to be Robin Hood. So that's so the rebellious nature आपने देखा ही हुआ उस समय। Because मतलब इनकी जो तस्वीरें जब भी देखने को मिली हैं, इनफैक्ट कभी बार मैंने 1-2 मैगजीन्स भी, जब पुरानी तस्वीरें भी देखी हैं, she has this, you know, gorgeous, इनकी आंखें और इनकी एक स्माइल। Absolutely. है ना? And in fact, I remember on one of our Society Day functions again, we had this game show, you know, called Queen of Sheba, where one child is made the queen and she asks, you know, people to bring things, and Pallavi was a Queen of Sheba, for which again I was very angry with her because I couldn't be the Queen of Sheba and she was, but she was looking absolutely gorgeous with a little crown on your head. I still remember those things. I know, yellow maxi. Maxis were in fashion those days. तो मैक्सी पहन के जो थी, सो रॉबिन हुड भी इनको ही बनना था, क्वीन भी इनको ही बनना था, सारे लीड रोल इनके लिए रिजर्व। वैसे भी स्टार थे पहले से। तो चलिए ये एक अच्छी चीज है कि ऑलवेज यू नो अ स्टार। कुछ और लोगों ने इनके बारे में कुछ चीजें बताई हैं उसी जमाने से, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। Hi Pulse, love you. Remember I was with you on that set for the dance number that you did with Shabana ji and Poonam Dhillon, Mithun Chakravarti. And you were mortally scared because that's one weak point in you which I'm very, very good at. And you wanted me to be with you, and we would go to the makeup room and rehearse all the steps with me, and then you would go and perform on the set and you would dance. And I still have one picture of yours in my mind which I'll hold on to. I'll not tell what that is. I want to show it to you. Hang on. This is how I remember you. What a lovely ये तनुश्री है आपकी सिस्टर, My elder sister. your elder sister। ये जो कहानी बता रही थी आपकी डांसिंग की, ये क्या? प्लीज मत पूछिए, ये मतलब डांस और मैं तो ऐसे 2 चीज़ें हैं जो शायद कभी मिल नहीं पाएंगे। I've got 2 left feet and there was this dance sequence, एक फिल्म थी झूठी शान नाम की, और उसमें जो मेरी परेड हुई है डांस करते हुए। मतलब मिथुन दा अगर उस गाने में है तो यू कैन इमेजिन कि उनका तो मतलब ही जस्ट कीप स्विंगिंग। या एक फाइनली स्टेप मुझे ढंग से आई थी विच आई कुड फाइनली डू वेरी वेल। ताई ने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी मुझसे,
सो आई वाज लाइक ये लेट्स डू दिस। हम लोग गए वहाँ पे, पूनम ढिल्लन के कुछ यहाँ पे पिंपल निकल गया था, तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरा ये प्रोफाइल यूज़ कर लीजिए, एंड आई कुडंट डू इट द अदर साइड। तो एक ही स्टेप जो मुझे अच्छी से आ रही थी वो भी गोल हो गई। हमें क्या चाहिए था, उसको फ्लिप कर ले रहे हो, इधर वो शॉट को फ्लिप कर देते। बहुत सारे और लोग हैं जिनकी कुछ बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं पल्लवी के बारे में। चलिए किसी और की मेमोरीज शेयर करते हैं। Grow from a teeny bopper when we first entered your house to somebody who got into acting in films and television, and then someone who then evolved as a person into a woman, got married, and boy, you're a mother now of two wonderful kids. So it's been a long time, and it's been such a wonderful relationship that we've shared with each other. इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यू आर वेरी केयरफुल विद योर मनी, Is that what he said? एंड वजह उन्होंने ये कही थी कि शायद इसलिए थी बिकॉज एक समय आपने ये भी देखा था जब पैसे की अहमियत आपने सबसे ज्यादा समझी, when you were all going through a bit of a financial crisis. Right. What was the time? क्या हुआ? My father had this partnership, वो plays वगैरह प्रोड्यूस करते थे तब, एंड द पार्टनरशिप फेल थ्रू। तो उसके बाद देयर वाज एक समय था जब काफ़ी वो 8-9 महीने तक चला, व्हेन वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड फाइनेंशियल, वेरी बैड बंगला जो था आप लोगों का वो, जी हाँ, जूहू में बंगला भी हमने लिया था, एंड बंच ऑफ थिंग्स हैपेंड, यू नो, व्हेन जब बुरा समय आता है तो हर चीज़ हो जाती है। जैसे हमने बंगला ख़रीदा और मेरी दादी जो है वो नहाने गई थी बाथरूम में, शी स्लिप्ड एंड शी फेल डाउन। मेरे पिताजी को कोलाइटिस का अटैक आ गया, ही हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो सब लोग कहने लगे अरे ये तो अपशकुन हो गया, ये घर बेच दो, ये नहीं चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर हमने 2.5 लाख रुपए में बंगला ख़रीदा था वो, और तब हमको वो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। दिस इज़ वे बैक इन द 70s। तो एनीवे वो बंगला वी डिसाइडेड टू गिव इट बैक टू द बिल्डर, एंड उसके बाद देन देयर वाज नो मनी कमिंग, सडनली देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्रंच। और उस वक्त पे माय मदर एक्चुअली वेंट आउट एंड हैड सोल्ड ऑफ सम ऑफ हर ज्वेलरी, यू नो। तो वो मुझे इंसिडेंट इतना ज़्यादा याद है क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन विद सरिता आई वाज सपोज्ड टू गो आउट। सी रॉक रेस्टोरेंट नया खुला था वहाँ, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में हमें जाने की बड़ी, मैं सुना हुआ था, गए तो नहीं थे तब तक। सो सरिता's mother with a bunch of friends was supposed to go and have lunch there. तो सरिता उनके साथ जा रही थी, तो she invited me along. तो मैंने अपनी माँ को बोला कि हम तो जा रहे हैं, I want to go there. मैं कपड़े क्या पहनूँ? I was very excited, and that was the time कि we were going through this rough patch. तो मेरी माँ ने मुझे 50 रुपये निकाल के दिए और कहा कि अपने खाने के पैसे तुम खुद दे देना। So at the end of the lunch, I went to Meena Mashi, her mother, and I gave her the money. कि ये मेरे खाने के पैसे। So she started laughing. She said, तुम पागल हो क्या? तुम जैसे सरिता है वैसे तुम वो मेरे लिए, don't even show me the money, चलो रख लो अपने पास। तो मैंने वापस आके मेरी माँ को दिए पैसे, एंड उन्होंने जो ज्वेलरी अपनी बेची थी उसमें से सब बच्चों को थोड़े थोड़े दिए थे, उसमें से मुझे 50 दिए थे। So I came and gave it back to her and I said, you know, you can keep this money, I didn't need it. तो आई ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम रख लो, तुम्हारे पास होते नहीं पैसे तो तुम रख लो। But somehow that 50 rupees इतना ज़्यादा उसके साथ मेरा मतलब इफ़ेक्ट हो गया उससे। आज भी शायद जब मैं ख़र्च करूँगी तो 100 रुपये देते हुए मुझे कुछ नहीं लगता, पर 50 रुपये की आज भी अहमियत है।